So, hello everyone, and we'll continue with the basic thermodynamics part, of which we have studied till the heat and work interaction between system and surroundings, and we have completed till the analysis of heat and work, both of this point function, path function, everything we have covered so far. Now, before we move into the first law of thermodynamics, we shall have a look at the numericals that might come from heat and work. I'll not uh, I'll not make you guys do a lot of practice today also. Like we'll just have an idea कि कहने का key questions कहने का है. So having an idea of solving numericals will help you and will let you go far, and basically it will help you with all the questions that might appear for CIs or end semester exams. सब इसके लिए आपके लिए रहेगा. तो numericals practice करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन. ठीक है, तो क्विक रिवीजन में क्या क्या है हमारे पास. क्विक रिवीजन में हम लोगों को पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई किस पे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we talked about the definition of thermodynamics, and while defining thermodynamics we had to concentrate our entire studies of thermodynamics on something called as system, right? All of you, system. And system will interact with surroundings. System will interact with surroundings in the form of heat and work. Right? The system will be system that is a fixed region in space. This particular thing, this system will have its own state conditions. This state पे है, so it will have states, and the states of the system is defined by properties. So properties will define. There will be various properties that will define the state of a system. तो state 1 से लेके state 2 तक जाता है. तो प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे कि स्टेट 1 पे जो प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि P1, V1, P1, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, S1, entropy, so like this. And this will change to state 2, and the properties will also change P2, V2, T2, U2, H2, S2, ऐसे. ये स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज चेंज होगा बस. सो प्रॉपर्टीज विल चेंज and correspondingly the states of the system will also change only when we apply a process to the system. एक सिस्टम पे हम लोग प्रोसेस लगाते हैं तो सिस्टम अपना स्टेट बदलता है. तो प्रॉपर्टीज ये होता है. तो अभी हम लोग सिस्टम स्टेट प्रॉपर्टीज के बारे में छोटा सा रिवीजन हुआ. सिस्टम इंटरेक्ट्स विद सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क. So we will have certain sign convention. This will be system. This will be entire thing will be surroundings. Anything other than the system will be surroundings. तो system तो अगर आप heat supply करते हो, if you supply heat, it is positive. If it rejects heat, it is negative. Supply rejection. फिर आता है work supply. तो work supply जो है, work done on the system is taken as negative, and work done by the system, ठीक है. तो WS की छोड़ो, W1 W2 ले लेते हैं. तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव. तो हम लोग का सिस्टम जो होता है दो तरह का होता है, विच इज आल्सो नोन टू यू क्लोज. तीन तरह का होगा, क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड. क्लोज सिस्टम में मास फ्लो नहीं है, ओनली हीट एंड वर्क फ्लो है. ओपन सिस्टम में मास, हीट, वर्क तीनों है, और आइसोलेटेड में नथिंग, कुछ नहीं, नल. Am I clear all of you? Yes, sir. ठीक है. तो क्लोज सिस्टम हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ओपन सिस्टम कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस जैसे कि टरबाइन हो गया, आपका पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट लॉ जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग को क्लोज एंड ओपन सिस्टम का एनालिसिस बाय ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फर्स्ट लॉ अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा. लेकिन हम लोग को यहाँ पे हीट एंड वर्क इंटरेक्शन कर रहे थे, तो हम लोग हीट के बारे में जब रिविजन कर रहे थे, तो हीट का रिविजन हम लोग विल टॉक अबाउट हीट हियर. So heat are of two types. क्या क्या है guys? All of you? Function and man. Two types of heat. So sensible heat and latent heat. Very good, yeah. Very good. We will have sensible heat and we will have latent heat.
सेंसिबल हीट इज फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, है ना। तो सेंसिबल हीट इज गिवन एज एम सी डेल्टा टी, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो इट इज इक्वल टू एम सी डी टी। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, खजन sir. मुझे पैसा, है ना। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज द टोटल फॉर्म बेसिकली। और लेटेंट हीट में होता है कि टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, फेज चेंज होता है। तो इन दिस केस क्यू लेटेंट हीट इज गिवन एज मास इनटू latent heat of whatever the process takes place, where whatever the phase change takes place। अगर जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो विल टेक latent heat of fusion, अलग अलग आता है कैसा, विल हैव फ्यूजन। लिक्विड से अगर वेपर बनता है तो वी कैन हैव latent heat of vaporization। अगर वेपर से लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और लेटेंट हीट यानी कि लिक्विड से अगर सॉलिड बन जाता है तो सॉलिडिफिकेशन। अलग अलग हमारे पास लेटेंट हीट आएगा। तो फ्यूजन क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड बना, ये लिक्विड से वेपर बना, और ये वेपर से जब लिक्विड बनेगा तो हम लोग का कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो ये सॉलिडिफिकेशन होगा। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एल विल बी प्रोवाइडेड टू यू, दिस आर ऑल एक्सपेरिमेंटल। ये जो एल का वैल्यू है सब लैब में डिटरमाइन किया जाता है गाइस, हम लोग को कोई एजम्पशन में नहीं चलना इसको। दिस विल हैव स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ materials changing their phase between solid to gases और solid to liquid to gases। और आता है हमारे पास वर्क, सॉरी वर्क डन जो होता है भाई, द वर्क डन इन दिस केस, द वर्क ऑफ कंट्रोल, सॉरी वर्क ऑफ ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम निकालना पड़ता है हम लोग को। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज गिवन एज ईडीवी, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं। खंजन एंड माया आप लोग को तो मिला होगा रिकॉर्डेड वीडियोस में, है ना, Yes, sir. है ना। और इसका नोट्स भी आपको बहुत अच्छा सा मिला होगा, तो पीडीएफ दैट यू मस्ट हैव गॉट वो भी बहुत अच्छा से मिलेगा। सो तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क को इंटीग्रेट करते हैं, ऐसे डेल डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को वर्क मिलेगा, एंड दिस विल गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू वी पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी बिटवीन 1 to 2, 1 to 2 जो है ये दीज आर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए लगा है, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस में पहुंचने से पहले, वर्क का एनालिसिस करने से पहले हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछेगा। इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप लोग को एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज पूछेगा तो उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा कि व्हाट आर पाथ फंक्शन एंड व्हाट आर पॉइंट फंक्शंस, path functions and point functions। Point functions are those parameters of the system that can be represented on a plot। कोई ग्राफ पे हम लोग उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट फंक्शंस आर ऑलवेज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। एम आई क्लियर ऑफ इट? प्रॉपर्टीज जैसे कि क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। और पाथ फंक्शन ऐसा होता है जो कि डिपेंडेंट ऑन पाथ होता है। पाथ फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन पाथ द प्रोसेस फॉलोज टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। पॉइंट फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ फंक्शन जैसे कि अलग अलग पाथ से जाएगा तो अलग अलग वैल्यू जाएगा। जनरली हम लोग को हीट एंड वर्क होता है एग्जाम्पल्स का, अलग अलग रास्ते से जाओगे तो अलग अलग हीट का एनवायरमेंट होगा, अलग अलग वर्क करेगा। बट आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे जाओगे तो वहां का पॉइंट वैल्यूज या कोऑर्डिनेट्स सेम ही रहेगा, बस सेम ही। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जस्ट तो ये हमारे पास पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन के बारे में यहाँ पे समझते हैं। अब हमारे पास आता है लेट अस टॉक अबाउट वर्क। तो वर्क एनालिसिस जब हम लोग क्लोज सिस्टम में करते हैं तो हम लोग अलग अलग प्रोसेस में लगाते हैं। सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी करते हैं, एंड अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क बिकम्स पीडीवी इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी फ्रॉम 1 to 2। ये जो पीडीवी होता है ना गाइस, इसका एक एमसीक्यू आप लोग को फिर से पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। यानी कि मैं आपको
प्लॉट बनाता है, पीवी प्लॉट, we'll have PV plot. So PV plot क्या होगा guys, यहाँ पे pay attention. Just a minute. PV plot में क्या होता है guys? अगर मान लो हम लोग का सिस्टम स्टेट 1 यहाँ है, जिसका corresponding values V1 है और V1 ऐसे, ये एक्सपेंशन किया. If the system or the gas expands and reaches state 2, तो यहाँ का स्टेट 2 का प्रेशर हमारे पास P2 है, दिस इज P2, और उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो है V2, एक्सपेंशन होगा इससे. तो PdV का मतलब क्या होता है जानते हो? ये चीज समझाता हूँ. तो PdV होता क्या है? एट एनी वॉल्यूम V, दिस पे अटेंशन, एट एनी वॉल्यूम V, थोड़ा सा कैलकुलस आएगा, हाँ अच्छा से समझ में आएगा क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ में आएगा. बट एनी वॉल्यूम V, if I consider a small elemental volume change dV, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल पतला सा, तो वहां का प्रेशर मान लेते हैं, वहां का प्रेशर हो जाएगा P, यानी कि दिस वैल्यू इज P. तो अगर इसको ये रेक्टेंगल को अगर हम लोग बाहर निकाले, इफ आई टेक आउट दिस रेक्टेंगल आउटसाइड स्मॉल एलिमेंटल एरिया, इसमें हम लोग को हाइट जो है वो P दिखाई दे रहा है guys, ठीक है, और जो विड्थ है वो हम लोग को dV दिखाई दे रहा है. यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया है ना, dA विल बी इक्वल टू PdV होगा ना guys. dA स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, PdV है क्या? लेंथ इनटू विड्थ, एरिया मिलेगा. PdV इज नथिंग बट द स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया एंड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट. इस तरह से बहुत सारे एलिमेंटल एरिया को अगर हम लोग ऐड करते चले जाए बिटवीन V1 टू V2, तो हम लोग को पूरा ये 1 से लेके 2 तक का एरिया मिलेगा कि नहीं guys? बोलो तो ऑल ऑफ यू टेल मी. Yes, sir. कोई डाउट है Yes, यहाँ sir. पे? इफ देयर इज एनी No. डाउट लेट मी नो. ठीक है, सो No, sir. একটু বুঝাইছো সকে না রেকর্ডেড ভিডিও তো সাইসা সকে, রাইট? Yes, sir. একটু मैं বুঝাইছো कि area under the curve is nothing but the work done. So this total area, ये जो work आया 1 to 2, this thing is nothing but area under what? Area under PV curve, area under PV curve, which will give us the work done. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज में टेस्ट कर देगा, ऐसे करके देखो, हाँ ऐसे करके प्रोसेस 1 to 2 दे दिया, यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ का V1 आपको 0.1 दिया, यहाँ का वैल्यू आपको 0.6 दे दिया, तो यहाँ पे ऐसे तो 0.1 का प्रेशर आपको दे देगा कुछ, और 0.2 का प्रेशर आपको दे देगा, ऐसे करके यहाँ का प्रेशर दे देगा. 0.1 हम लोग को दे देगा, मान लो ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में है, तो यहाँ का प्रेशर अगर हम लोग को 1 का प्रेशर अगर हम लोग को दे देता है P1 अगर हम लोग को दिया है, एक्सपेंशन किया, मान लेते हैं 300 और ये 100 पास्कल, तो बोलेगा कि फाइंड द वर्क डन. ऐसा तो आपको करना क्या है, एरिया निकालना है. तो अब ये पूरा 1 to 2 के अंदर का एरिया विथ रेस्पेक्ट टू V है, बिकॉज इंटीग्रेशन इज टेकिंग प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू V. तो V का डिफरेंशियल फॉर्म ऐसे लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू V हम लोग को क्या मिलता है, एरिया मिलेगा. द इंटीग्रेशन विल बी डन विद द ऑपरेटर अप्लाइड ऑन V वॉल्यूम. तो हम लोग को टोटल एरिया यहाँ का निकालना पड़ेगा. तो दिस एरिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कैसा, ये 2 पार्ट्स में है. तो यहाँ से एक ट्रायंगल है तो दूसरा रेक्टेंगल है गाइस, तो हम लोग को ये वैल्यू निकालना पड़ेगा. 2 पार्ट्स में करने से भी कर सकते हो, या फिर आप ट्रेपेजियम समझ के भी कर सकते हो गाइस. यू कैन जस्ट डू ट्रेपेजियम आल्सो. ये एरिया निकालोगे तो टोटल वर्क, इसको एरिया कैसे होगा, दिस थिंग विल बी इक्वल टू, पहला है ये, इसको एरिया 1 मान लेते हैं, इसको एरिया 2 मान लेते हैं. एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 विल गिव अस द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन. तो 1 जो है ट्रायंगल है, तो इट विल बिकम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. हाइट कितना है, ये हाइट है, 300 माइनस 100 कितना, 200, और बेस कितना है 0.6 इंटू 0.6 माइनस 0.1 0.5. एरिया 2, ये
रेक्टेंगल हो जा रहा था, दिस इज रेक्टेंगल, यहाँ से आता है। तो इसका हाइट कितना 100 और विड्थ कितना 0.5, इसका भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया जो आएगा वही आपका वर्क डन होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इस तरह से आपको ये सब क्वेश्चन, ये जो ऐसा क्वेश्चन है, दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी एंटरटेन टू यू, एंटरटेन फॉर यू इन द एमसीक्यूज बेस है, एमसीक्यूज में पूछेगा। तो ये हमारा वर्क डन के बारे में हुआ। अब वर्क डन हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस में भी निकाले थे, तो आप लोग को याद होगा, अगर वर्क डन, खंजन बताओ, वर्क डन वॉल्यूम कांस्टेंट में कितना होता है क्लोज सिस्टम? जीरो। फ्लो सिस्टम में वर्क डन जीरो होता है। फ्लो सिस्टम को बोलते हैं नॉन फ्लो प्रोसेस। फ्लो सिस्टम में जो भी प्रोसेस लगेगा उसको नॉन फ्लो प्रोसेस बोलेंगे। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज इन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम कांस्टेंट, सो डीवी इज इक्वल टू जीरो। डीवी जीरो से वर्क डन जीरो। Work done in pressure constant is equal to Maya. Any idea? P बाहर होता है जब, right? And we will have V2 Yes. minus V1. ठीक है सर? Between 1 to 2. Then we will have work done in temperature constant, isothermal process. यह ध्यान है आप लोग को? It is equal to P1 V1 ln V2 by V1. It is also equal to P2 V2 ln V2 by V1. It is also equal to P1 V1 ln V1 by P2. It is also equal to P2 V2 ln P1 by P2. ठीक है, फिर हमारे पास वर्क डन इन Pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हम लोग को याद, आप लोग को याद होगा, दिस वन वाज इक्वल टू P1 V1 minus P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, है ना ऑल ऑफ यू? आई होप यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू। ठीक है, Yes. गामा को बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स। Adiabatic index. So gamma is the ratio of specific heat Cp by Cv, and Cp minus Cv is nothing but R. R is equal to universal gas constant R bar divided by molar mass. ये चीज आपको पता होगा। ये कहाँ से आता है? Pv is equal to mRT से आता है। हमारे पास equations of gases जो था, one was Pv is equal to n R bar T, ideal gas equation, number of moles, universal gas constant, temperature in Kelvin, volume and pressure। अगर स्पेसिफिकली आपको कोई गैस के बारे में बताया हुआ है, देन इट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू mRT। दोनों के बीच में रिलेशन यही है, मास ऑफ ए गैस इज, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस इज गिवन एज गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये रख देते हैं, तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स की जगह ये रखेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा। ये R जो आता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू R बार बाय n। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक छोटा सा रिवीजन किया। देखो आप लोगों ने क्विक रिवीजन किया, सारा चीज क्लियर हो गया? और फिर Yes, sir. ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टॉट सो फार, आपका सब कुछ कवर हो गया यहाँ पे अच्छे से। सौमित्र, व्हाट अबाउट यू? व्हेन हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं बस यहाँ पे नीचे की तरफ। So we have here a fluid at a pressure of 3 bar. A fluid at a pressure of 3 bar. ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आर के राजपूत के बुक से। हाँ, आर के राजपूत के बुक से। तो fluid at a pressure of 3 bar and with specific volume मीटर क्यूब पर केजी, यानी कि स्मॉल v दिया हुआ है। आपको मैं बता देता हूँ, कैपिटल V जो होता है दैट इज टोटल वॉल्यूम। स्मॉल v जो होता है उसको बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। टोटल वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर केजी। वही दिया हुआ है। एम आई क्लियर? यानी कि 1 केजी का कितना वॉल्यूम आ रहा है कोई भी सब्सटेंस, वो फ्लूइड का 1 केजी लेंगे तो उसका वॉल्यूम आता है 0.18 केजी। कंटेन्ड इन अ सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन, कंटेन्ड इन अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट बिहाइंड अ पिस्टन एक्सपैंड्स रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू से।
टू अ प्रोसेस प्रेशर ऑफ 0.6 बार। पहले 3 बार पे था, अब वो एक्सपैंड कर गया तो 6 बार पे हो गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ P इज इक्वल टू C बाई V स्क्वायर। P को कैपिटल P लिखा था क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक प्रेशर तो होता नहीं है। So I'll have this as C by V square, where C is constant. Calculate the work done by the fluid on the piston. 3 बार पे था और स्पेसिफिक वॉल्यूम इनिशियल देखो पहला फ्लूइड एट अ प्रेशर ऑफ 3 बार एंड दिस, यानी कि अगर आप अटेंशन दोगे इस चीज को तो यू विल सी दैट आप लोग को इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल स्टेट कंडीशन दिया हुआ है। Am I clear all of you? Initial state has been mentioned. Initial state का मतलब हो गया कि P1 is equal to प्रेशर जो है P1 is equal to 3 bar and small v1 is equal to 0.18 मीटर क्यूब पर केजी कंटेंट इन सिलेंडर भी है। अब ये एक्सपैंड रिवर्सिबली, लेकिन आपको प्रोसेस का नाम दिया है क्या गाइस? माया, संजय, सौमित्र, एनीथिंग दे हैव मेंशन्ड अबाउट द नेम ऑफ द प्रोसेस? कुछ बोला है उन्होंने? नहीं बोला है ना? No, sir. दे हैव नॉट सेड ये कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम, बस एक रिलेशन मेंशन कर दिया है जो कि ये है। तो P1 V1 से ये चला जाता है, दिस थिंग गोज टू P2. P2 is given as 6 बार या 0.6 बार और V2 हमारे पास नहीं पता। But this expansion takes place along a relation P is equal to C by V square, small v square. और डेफिनेटली ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, डेफिनेटली ये आपका क्लोज सिस्टम एनालिसिस से क्वेश्चन। तो हम लोगों ने एनालाइज किया कि अच्छा पिस्टन सिलेंडर क्लोज सिस्टम, स्पेसिफिक वॉल्यूम मेंशन किया यानी कि 1 kg ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के बारे में बात करें तो हम लोग को वर्क निकालना पड़ेगा, तो हम लोग का वर्क भी पर केजी में निकलेगा गाइस, जूल पर केजी में ऑब्वियसली। और यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो बार में दिया हुआ है गाइस। तो आप लोग को एक छोटा सा आइडिया फिर से यहाँ पे दे दूं, क्योंकि आप लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हो ना, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बच्चा का तेरा पढ़ाऊंगा यहाँ पे। हाँ, ये भाई फ्लूइड का या सॉरी प्रेशर का जो यूनिट होता है वो अलग अलग होता है। सो 1 बार यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर यूनिट्स। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आता है 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, और 1000 पास्कल यानी कि 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या चलो 1 बार ले लेते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है। Am I clear all of you? 10 to the power 5 पास्कल। Yes, sir. अगर पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 10 to the power 3 से 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जीरो रह जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा 5 जीरो में से, तो 2 जीरो रह जाएगा, तो 2 जीरो का मतलब 100 किलो पास्कल 1 बार दिया। ठीक, और हमारे पास एक और यूनिट आता है जिसको बोलते हैं 1 ATM। तो 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, दिस इज इक्वल टू 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। 10 5 डेसिमल प्लेसेस आगे ले लें, प्लीज पे अटेंशन। और 10 to the power 5 पास्कल जो होता है भाई वो तो बार होता है, तो इट इज इक्वल टू 1.01325 बार प्रेशर यूनिट्स। ये मैं एडिशनल नॉलेज इसलिए देते रहता हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। यूनिट्स का सबसे बड़ा गेम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कोई इंजीनियरिंग, खासकर सिविल और मैकेनिकल, यूनिट्स बहुत बड़ा गेम खेलता है। तो हम लोग को बोला है, क्या बोला है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्लूइड, वर्क डन निकालिए फ्लूइड का ऑन द पिस्टन। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो हम लोग को मालूम चल गया क्लोज सिस्टम है, तो हम लोग को पता है कि वर्क डन जो होता है डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी होता है,
तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। ऑल्सो अगर स्पेसिफिक वैल्यूज में लिखा जाए, और ये तो टोटल वैल्यूज में, इसका यूनिट हम लोग को न्यूटन आएगा बस। अगर और अगर हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज में लिखते हैं तो डेल डब्ल्यू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी स्मॉल डी। ये स्पेसिफिक वैल्यूज में लिखा गया, ये हमारा स्पेसिफिक वैल्यूज में लिखा गया। इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर केजी, सॉरी न्यूटन बोलता हूँ मैं, वर्क का यूनिट जूल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्क का यूनिट यहाँ पे हम लोग के पास न्यूटन जूल आएगा, और यहाँ पे जूल पर केजी आएगा। बस पर केजी को लेकर बात एक ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस 1 केजी पे कितना वर्क कर रहा होगा ये बताया जा रहा है, ये ध्यान रखना। और वर्क करने के लिए हम लोग वर्क निकालेंगे तो हम लोग को स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग यूज इट, सी दैट्स इट। तो हमारे पास सी डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, अगर हम लोग को वर्क डन मिलेगा, इसलिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 पी डी वी। तो हम लोग को देखो 1 से 2 तक जाएगा, तो वॉल्यूम V1 तो दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम V2 पता नहीं है हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू V हो रहा है। तो दिस वैल्यूज 1 and 2 वैल्यूज, यानी कि फाइनल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का वैल्यूज हम लोग को वॉल्यूम में मेंशन करना है। जब वॉल्यूम पता ही नहीं है V2, तो हम लोग को V2 को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऐसे होता है अप्रोच, क्वेश्चन का अप्रोच निकालना। जब क्वेश्चन का अप्रोच निकालेंगे तब देखो यहाँ पे कि हम लोग को डिटरमाइन तो कौन सा रिलेशन से फॉलो कर रहा है, P is equal to C by V square। तो रिलेशन दैट द प्रोसेस undergoes, या रिलेशन दैट द प्रोसेस the relation between the states for the process is equal to PV square is equal to constant है। P को जब मल्टीप्लाई करते हैं constant, इसका मतलब ये है कि this is equal to P1 V1 square is equal to P2 V2 square। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 का वैल्यू 3 और P2 का वैल्यू नीचे रहेगा 0.6 इज इक्वल टू V2 by V1 का स्क्वायर हो गया, V1 यहाँ है, which implies ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो 5 इज इक्वल टू V2 by V1 का स्क्वायर। अब आप मेरे को खुद बताओगे, कैलकुलेटर यूज करो, अंडर रूट ले लोगे तो √5 is equal to V2 by V1, which implies V2 would be equal to √5 into V1। V1 is given to us 0.18 kg, 0.18 meter cube per kg। So √5 into 0.18 कितना आया चेक करो तो खाली V2 का वैल्यू, कैलकुलेटर আছে माया? Yes, sir. पढ़ो प्रैक्टिस करो। तो आई एम हैविंग दिस वैल्यू 0.402 आ रहा होगा, चेक कर दो। ज्यादा देर मत लगाओ हाँ कैलकुलेटर यूज करने में, हैव टू इंक्रीज द स्पीड सो दैट वी नीड टू सेव टाइम। टाइम सेव नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो V2 का वैल्यू आ गया, ये आया है ऑल ऑफ यू? कंजन क्या हो गया यार, अब कैलकुलेटर नहीं की कंजन? Yes, sir. Yes, sir. It is. अरे कंफर्म करता हूँ मैं इसलिए क्योंकि पता चले तो कि आप लोग सही कर रहे हो। ऐसे और अब डिले हो ऐसे, हाँ कैलकुलेटर यूज करो, थोड़ा सा स्पीड करो, प्रैक्टिस करते करते स्पीड होगा गाइस। हाँ तो V2 इसको तो 0.402 ये आ गया हमारे पास V2 का वैल्यू। तो V2 का वैल्यू ये आया, तो हमारे पास स्मॉल V2, तो हम लोग क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो वर्क डन स्मॉल w इज इक्वल टू P का वैल्यू, सिंस P का रिलेशन V के साथ है और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू V है गाइस, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू V है, तो हम लोग P की जगह C by V स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस ऑल ऑफ यू, बोलो तो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. So W is equal to C बाहर आ जाएगा, I'll have integration of dV by V square from 1 to 2, so this is equal to C integration of V to the power minus 2 dV 1 to 2, I'll have this as C V to the power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1,
तो V1 से V2 तक यही जाएगा वर्क डन। अब C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू तो कुछ भी ले लो, P1 V1 स्क्वायर, है ना? तो C का वैल्यू है क्या? C इज इक्वल टू P1 V1 स्क्वायर। P1 कितना था? 3 बार। चलो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, P1 V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, -2 + 1 इज -1, तो नीचे रख देते हैं -1, ऊपर आ जाएगा v टू द पावर -1, ऐसे हो जाएगा इस ऑल ऑफ इट। कोई दिक्कत है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P1 V1 स्क्वायर, और यहाँ पे V1 से V2 तक, तो ये तो -1, तो इसको मल्टीप्लाई होगा तो v टू द पावर -1, v टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/v, पहले 1/v2 -1/v1। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes. चलिए करें। ये माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो P1 V1 स्क्वायर, तो आई विल हैव 1/V1 -1/V2, यही होगा गाइस, माइनस ऑफ दिस माइनस माइनस प्लस, ठीक है भाई। P1 3 बार, तो आंसर जूल में लिखना है या किलो जूल में लिखना है, आपको देखना है, ऐसा यूनिट में लिखना है, बार में नहीं लिख के आओगे आप। वर्क डन इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 3 बार, 3 बार का मतलब 3 × 10⁵ क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, so 3 × 10⁵। V1 का वैल्यू 0.18 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/0.18 माइनस 1/0.402। देखो एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में बताया गया कि इट एक्सपैंड जब भी होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इन पहले का जो वॉल्यूम था V1 जिसका वैल्यू 0.18 था, उससे ज्यादा वॉल्यूम हुआ ना एक्सपेंशन होने के बाद। अगर आपका कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू V2 का वैल्यू 0.18 से कम आया, तो समझ जाना कहीं ना कहीं सीधे मिस्टेक हुआ। सिंस वॉल्यूम हैज इंक्रीज, इट मींस यस, आपने सही किया, ठीक है गाइस, ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. ठीक है भाई, तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास ऐसे है, तो 0.18, तो 0.18 इंटू 0.18 करेंगे तो हम लोग का 0.0324 आ रहा है। इसमें अगर हम लोग 10⁵ मल्टीप्लाई कर दिए तो 3240, इसका वैल्यू 3240 इंटू 3 कर देंगे तो 9720, इसका वैल्यू अभी तक हमारे पास 9720 आ रहा है, इंटू 1/, तो हमारे पास कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर यूज कर अंजन एंड माया, तुम लोग के कैलकुलेटर यूज करबे ভালকে জানা না, এটা টিউটোরিয়াল লাগিব তোমালোকক স্যার মানে এনে প্লাছ মাইনাছটো কৰিব জানো, বাট কিছুমান বস্তু অলপ টাফ হয় স্যাৰ, যেনেকৈ আমি BEE ইউজ কৰোঁতে অলপ টাফ পাইছিলোঁ কিছুমান বস্তু। So it means like যদি তোমালোকক মই এটা এটো দিছো, I give you a tutorial, है ना, যে ভালকে বুঝি পাবে, ঠিক আছে। Yes, sir. तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे वर्क डन ऐसे है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल्स में आएगा, लेकिन किलो जूल में लिखने से ज्यादा अच्छा है। इफ आई डिवाइड दिस बाय 1000 तो 3.06999 आ रहा है, तो हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया, 3.068। ऑलवेज टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आई विल हैव 9720 इनटू 3.068, एंड इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो आई एम गेटिंग द वैल्यू 29.82। चेक कर लेना आपको, जूल पर केजी था यहाँ पे, क्योंकि पर केजी पे बात कर रहा है, 29.82 किलो जूल पर केजी। आई हैव डिवाइडेड दिस बाय 1000, तो आप लोग को वर्क आ गया आंसर। दिस इज योर आंसर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. माया বুঝি পাইছা? কোনো ডিফিকাল্টি? Yes, sir. এপ্ৰোচটো বুজিব লাগিব যে লাইক হা মোক মানে ইনিশিয়াল ভ্যালুজ এটো দিয়া আছে আৰু আমাক ফাইনাল প্ৰেছাৰ দিয়া আছে। In order to solve the question for work done, we need to have the final value of the volume after expansion. In order to find out the value of the volume after expansion, we need to use the relation given between pressure and volume for the process executed on the system. So we will have this with. तो हम लोग नेक्स्ट ये में जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, 1 kg of a fluid is compressed reversibly is क्या बोल रहा है,
compressed reversibly. अब देखो यहाँ पे एक और चीज इससे पहले बता देता हूँ, सिंस ये वैल्यू पॉजिटिव आया, तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अब ये भी समझा देता हूँ कैसे. कि सिलेंडर था, दिस वाज पिस्टन एंड दिस वाज सिलेंडर, और यहाँ पे फ्लूइड था या फिर गैस था, उसने प्रेशर लगाया ऐसे करके और ये एक्सपैंड कर गया, बाहर सराउंडिंग है, तो बाहर सराउंडिंग है गैस यहाँ पे. चलो ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जो पिस्टन था ये बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ एक्सपेंशन से, तो गैस ने वर्क किया ना, गैस हैज डिस्प्लेस द पिस्टन. ठीक है, गैस ने वर्क किया, तो सिस्टम हैज डन वर्क, वर्क वाज डन बाय द सिस्टम एंड इट turned out to be positive. The final volume V2, the initial volume V1. There is expansion taking place. Am I clear, all of you? Yes or no? Yes, sir. So 1 kg of a fluid is given to you, compressed reversibly according to the law of PV. ये P का वैल्यू हमने थोड़ा सा बड़ा लिखा, P तो कभी छोटा नहीं लिखा जाता है, P is always capital. तो PV, P is small, P दिया हुआ तो मीटर क्यूब पर kg में दिया जाता है, where P is in bar and V is in meter cube per kg. The final volume is 1/4 of the initial volume. यानी कि V2 is 1/4 of. Calculate the work done on the fluid and sketch the process on PV diagram. Work done on fluid and sketch the work. तो देखो एक और बात मैं बताता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन. आई टॉट यू P is equal to N/R/T. फिर इसमें बताया मैंने सॉरी PV is equal to N की जगह मास ऑफ द गैस या फ्लूइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू R/T. ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखा, तो PV is equal to मास रहने देते हैं, तो R बार बाय M एक जगह लिखते हैं, P comes to you as PV is equal to MRT, where R is equal to R bar by molecular mass. तो हम लोग के पास PV is equal to MRT आया, we got this. ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन मान लेते हैं. मैंने अब क्या करते हैं हम लोग कि देखो PV is equal to कांस्टेंट दिया हुआ, PV is equal to कांस्टेंट. अगर पर यूनिट मास में लिखा जाए तो स्मॉल p हो जाएगा, इट इज आल्सो कांस्टेंट एंड गिवन टू हियर 0.2. PV is equal to कांस्टेंट मैं बोलता हूँ ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल. कैसे आइसोथर्मल, देखो अब PV बाय T कर दूं तो हमारे पास M into R आ जाएगा. Mass of a system is constant always and R is known as characteristic gas constant. तो constant into constant एक दूसरा constant बनता है C dash. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है PV is equal to constant. जब PV is equal to constant दिया हुआ है यानी कि टेम्परेचर भी constant होगा तभी तो. जब PV को constant बनाना है तो एक कांस्टेंट C डैश के साथ टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर को भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट विल बी C, which implies PV is equal to PV is equal to constant and this value is given to as 0.25. यानी कि यहाँ से हम लोग का अंडरस्टैंडिंग या हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ा अभी तक एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन में, हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, the process that is being executed for the system is isothermal in nature. Am I clear, all of you? Yes or no? Yes, sir. कोई डाउट है? If there is any doubt, let me know. हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू है.
आइसोथर्मल प्रोसेस है और हम लोग को मालूम है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू P1 V1 ln ऑफ V2 by V1 होता है। एंड आपको क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। बोला है ना गाइस ऑल ऑफ यू? द Yes, फाइनल sir. वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। सही है भाई, यानी कि फाइनल वॉल्यूम V2 इनिशियल वॉल्यूम V1 इट इज 1/4 ऑफ V1। हम लोग को किसका रेशियो चाहिए? वी वांट द रेशियो ऑफ V2 by V1। ये V2 जो है इसको छोटा में लिखते हैं, ये भी छोटा में लिखेंगे क्योंकि पर केजी में यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए, इससे कभी मिस्टेक मत करना। P1 V1 V2 by V1। So here I am getting this as small V2 is equal to 1/4 of V1। ये होता है guys। तो V2 डिवाइडेड बाय V1 करने से हमारे पास 1/4 आएगा। चेक करो, which implies, pay attention everyone, प्रेशर जो है बार में है गाइस, E is in bar and V is in मीटर क्यूब पर केजी। बार को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पास्कल में। तो P1 V1 जैसे कि PV आपको 0.25 दिया हुआ, तो ये बार मीटर क्यूब होगा, बार मीटर क्यूब पर केजी। समझ में आ रहा है ऑल? लेकिन बार को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, यू हैव टू कन्वर्ट द बार। सो इस ये हो जाएगा 0.25 बार जो है वो 10⁵ कर देंगे, तो जूल पर केजी हो जाएगा। दिस थिंग विल बिकम जूल पर केजी। देखो क्या होता है, पीवी जो होता है, पीवी यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज मीटर क्यूब पर केजी। मीटर स्क्वायर से 2 मीटर चला गया, 1 मीटर रह जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर इज जूल और नीचे केजी रहेगा। सो ये तो जूल पर केजी आएगा। एंड ln ऑफ V2 by V1 इज नथिंग बट 1/4। ध्यान से देखो, ये ln का डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम क्या होता है, इफ आई एम टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a by b, तो ln of a by b will be negative if a is less than b। ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि a by b अगर लेस देन 1 होगा तब ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, चेक करो, ln of 1/4 और ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। ये जूल पर केजी है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 0.25 इंटू 10⁵। आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना होगा। आप लोग को -34657.36 जूल पर केजी आ रहा है। चेक करो, आप जल्दी जल्दी चेक करो, प्लीज चेक। बोलो, आ रहा है कि नहीं इतना? आप लोग का कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है। खंजन, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो प्रॉब्लम है या नहीं? স্যাৰ प्रॉब्लम মানে মোৰ কেলকুলেটৰটো হোষ্টেলত আছে স্যাৰ, মই মানে ঘৰত আছিলোঁ। আৰু এইটো কি বুলি কয়, মায়া তুমি হোষ্টেল পাইছা? Sir, চলো ঠিক আছে। sir, মোৰ 325 something আহি আছে। 0.25 into 10⁵ ln of 1/4, ln of 1/4 is 0.25। चेक करना आप लोग अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे अगर जूल पर केजी, थोड़ा सा कैलकुलेटर अच्छे से प्रैक्टिस कराना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अगर जूल पर केजी तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आई हैव -34.657 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ,
माइनस साइन, तो माइनस साइन का मतलब हो गया कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन है। ये भी समझा देता हूँ कैसे। कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन में क्या होता है कि वॉल्यूम रिड्यूस होता है बस। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। तो कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले वॉल्यूम V1 ज्यादा था। कितना था? पिस्टन यहाँ था, वॉल्यूम V1 था। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोग पिस्टन पे बाहर से वर्क यानी कि फोर्स लगाएंगे, फोर्स करके पिस्टन को डिस्प्लेस कराएंगे। तो वर्क करना पड़ेगा। किस पे कर रहे हो? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी कि वर्क जो है दैट वर्क इज डन बाहर से, एक्सटर्नल वर्क इज अप्लाइड ऑन द गैस एंड फाइनल वॉल्यूम रिचेस टू V2। वर्क बाहर से लगाया गया, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो कंप्रेशन हुआ तो फाइनल वॉल्यूम V2 इज इनिशियल वॉल्यूम V1 by 4, 1/4 of the emission. Here compression is taking place. तो ऐसे थर्मली हो रहा होगा। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. अब क्या है कि इसको बोला है कि पीवी कर्व में, संजन एक और बात बताए आपको। संजन हटा बता पाऊँ, नो मैटर वेरेवर यू ट्रेवल, अगर आप फोन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी कैलकुलेटर मत भूलना। ठीक है, ओके सर। इन द नेक्स्ट अगर आप लोग कभी भी जाते हो, जैसे दुर्गा पूजा में जाते हो, घर जाते हो, तो हॉस्टल में छोड़ के मत जाओ कैलकुलेटर, टेक इट विथ यू। ठीक है, ओके सर। और मैंने जब पीवी डायग्राम में जब आपको ड्रॉ करके दिखाने के लिए बोला, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ऐसे होता है। आप अभी याद करने के देख ना, मैं फिर से समझाऊंगा एक चीज, ग्राफ एंड प्लॉट्स आपको समझाऊंगा अच्छे से। सो ये पीवी प्लॉट है, ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज फॉर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन कंप्रेशन हुआ है तो वॉल्यूम रिड्यूस होगा, हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम जाएगा, इसलिए ये ऐसे जाएगा। दिस थिंग विल गो समथिंग लाइक दिस। सो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस will be something like this. The path of the process is given to you by pink color. यहाँ से ये point 1, यहाँ से ये point 2। So point 2 जो है वो हमारा P2 हो जाएगा, point 1 जो है ये हमारा P1 हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम P2 कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया आएगा वही 34 पॉइंट समथिंग ऐसा है, 34.657, दैट इज इट। हमारा ये रहा गाइस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करता है। अब ये क्वेश्चन जो मैं अभी कराने वाला हूँ, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कहाँ से, IIT गुवाहाटी के प्रैक्टिस बुक से, जो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ोगे आस्तु के अंदर, तो IIT के स्टूडेंट्स लोग क्या पढ़ रहे होंगे तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं गाइस, क्या बोलते हैं? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा, इसको मैं बोल देता हूँ 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन। शैल यू प्रैक्टिस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. घबराना नहीं है। हाँ, ये सब कुछ भी चीज देख के जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख के घबराना नहीं, सोचो कि सब सॉल्व होगा। और सॉल्व कैसे होगा, सर कैसे सॉल्व करेंगे, कहने के मैं सॉल्व करूँ, हेतु साहित्य ने हिंदी बोलेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक एन अप्रोच टू अ क्वेश्चन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज। क्या क्या चीज पे ध्यान देना है उस पर फोकस करेंगे। सो वी हैव हियर कंसीडर वर्टिकल frictionless piston cylinder device as shown in figure. It contains gas, a gas. The piston has a mass of 4 kg, mass दे दिया piston का 4 kg, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर पिस्टन होगा। ठीक है, द कंप्रेस्ड स्प्रिंग above the piston exerts a force of 60 kN on the piston। तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है वो फोर्स लगाएगा कितना का, 60 न्यूटन ऑन द पिस्टन।
अगर बाहर का प्रेशर, if the atmospheric pressure is 95 kilopascal, the pressure inside the cylinder will be dash. किलो पास्कल में निकाल लेंगे गैस, विल बी डैश किलो पास्कल मैं लिख देता हूँ। प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर कितना होगा ये हिसाब से, ठीक है भाई। अभी पिस्टन जानते हो कैसा, पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फोर्सेस एंड ऑल लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। नाम होने से माया फ्री बॉडी डायग्राम है नाम। Yes, sir. Honey, sir. फंक्शन व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम फंक्शन ये की है एफबीडी। अगर तुमसे सर बोलो এটা বডিৰ মানে সেয়া যিবিলাক ফোর্স আছে সেইবিলাকেৰে আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো বডিটোক। we remove all the contact surfaces from the body, okay? We remove all the surfaces which are in contact with the body, just depict the what, just show that only the forces, just show only the forces acting on the body। जैसे कि अगर हम लोग पिस्टन लेते हैं, पिस्टन है, अगर हम लोग साइड से देखेंगे तो हम लोग को ट्रायंगल ऐसे करके रेक्टेंगल ही दिखाई देगा ये पिस्टन, ये हमारे लिए पिस्टन में क्या क्या फोर्स लग रहा होगा बताओ तो गाइस। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा आइसोमेट्रिकली व्यू देखते हैं, पिस्टन हम लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा अगर हम लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने विजन को थोड़ा ऊपर जाते हैं, हम लोग एकदम फ्रंट से देख रहे हैं, हम लोग को ऐसा दिखाई देगा। तो ऊपर से ऐसे करके स्प्रिंग लगा हुआ है पिस्टन पे, है ना गाइस ऑल ऑफ यू। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को ऐसा करके मिल रहा है, ऐसा करके मिल रहा है, दिस इज द थिंग। हम लोग को सिलेंडर मिल रहा है ऐसे करके बाहर की तरफ, और यहाँ पे नीचे ऐसे करके कुछ बेस होगा बस, और वो ऐसे दिखाई देगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे गैस होगा। ये जो ऊपर जो हम लोग को एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि सर्कुलर एरिया, यही एरिया आपको 0.3 या 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला है प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एफबीडी ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि पिस्टन पे सारा फोर्सेस पिस्टन पे लग रहा है, तो पिस्टन का एफबीडी बनाते हैं, तो ऊपर से एक स्प्रिंग फोर्स लगा ना गाइस ऑल ऑफ यू, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, ठीक है। फिर बाहर से मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। So there is a force exerted by the spring. So we will have force exerted by the spring. There is another force which is exerted by the atmospheric pressure. देखो तो 95 kilopascal का atmospheric pressure दिया, तो बाहर से एटमॉस्फेयर इस पे फोर्स लगा रहा हो। Since they have mentioned this, तो आपको फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगाएगा भाई, और पिस्टन का अपना खुद का वेट भी होगा गाइस, W, because they have mentioned about the mass as well. So W will be equal to mg. But इसको all these three forces will be resisted by the force of the gas। थोड़ा सा मैं मल्टीपल एरो से दिखा रहा हूँ कि गैस पूरे चारों तरफ ऐसे करके लग रहा है। Am I clear all of you? कोई डाउट है किसी को? If there is any doubt, let me know. So the force will be exerted by the gas, जैसे दिखा दो, so the force exerted by the gas। अब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि जो पिस्टन है अब ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने से नेट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, यानी कि अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेंगे, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस माइनस W माइनस स्प्रिंग माइनस फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू 0 और नो ऑल ऑफ इट? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब देखो
स्प्रिंग जो है नेचुरल स्प्रिंग का लेंथ ऐसे होता है। और स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस कर दो, जब आप कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग फोर्स कैसे लगाएगा, एक्सपैंड होने के लिए बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो कंप्रेस है तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग नीचे की तरफ लगेगा। और खासकर यहाँ पे बोल भी दिया ऑन द पिस्टन, इसलिए 60 न्यूटन ऑन द पिस्टन लगेगा बस, 60 न्यूटन। तो ध्यान से सुनना, फोर्स ऑफ स्प्रिंग 60 न्यूटन दिया हुआ, न्यूटन दिया हुआ ऐसा यूनिट में। तो अगर किलो में कुछ वैल्यू होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू, विल डेफिनेटली कन्वर्ट दोस थिंग्स इनटू न्यूटन। किलो पास्कल को पास्कल में ले आएंगे बस। तो ध्यान से एक और चीज, फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होता है, या फिर प्रेशर जो होगा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि फोर्स एरिया पे परपेंडिकुलरली लगना चाहिए, बिकॉज प्रेशर विल ऑलवेज एक्सर्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना तो सरफेस पे 90 डिग्री पे लगना है। फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फोर्स ड्यू टू गैस आई डोंट नो, और गैस का अपना प्रेशर होगा गैस, तो बाद में हम लोग को प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है ना, इसलिए हम लोग फोर्स से लेना देना करना है। फोर्स ऑफ द गैस पता चल जाएगा कि कितना फोर्स कितना गैस एक्सर्ट कर रहा है, मैंने गैस कितना फोर्स, गैस जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पिस्टन पे फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द डाउन। तो पता चल जाएगा कि जब ये मालूम चल के अगर हम लोग इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को प्रेशर ऑफ द गैस मिल जाएगा ना। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग एक्सर्टेड बाय द गैस, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी ड्रॉ करके हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन का फोर्स, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे। उसको यूज करने से हम लोग को फोर्स मिल जाएगा, अननोन फोर्स। तो मास सॉरी वेट कितना हो गया, mg, स्प्रिंग फोर्स 60 न्यूटन, F ATM, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना 85 किलो पास्कल, यानी कि P इंटू एरिया करेंगे बस। और वो किस पे लग रहा है, चारों तरफ लग रहा होगा ना, प्रेशर चारों तरफ लग रहा होगा एवरीवेयर, इट इज एक्टिंग एवरीवेयर। तो F ATM इज इक्वल टू प्रेशर ATM इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 95 इंटू 10⁻³ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। Please pay attention. The area is given to you as 35 centimeter square. 35 into 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meter square. 35 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा meter square. 35 into 10 to the power minus 4 must be equal to 0. This thing will give you the value of force applied by the atmosphere on the piston in newtons आएगा। Fg, force applied by the gas, minus mg, mass is 4, g is 9.81 into minus 60। सबको उधर ले जाते हैं बस, सबको उधर ले जाते हैं, सब माइनस में है ना, उसको उधर ले। I'll have 4 into 9.81 plus 60 plus 10 to the power 3, 10 to the power minus 4, तो 10 to the power minus 1 रह जाएगा guys। और 95 into 35 कितना होता है चेक करते हैं। 95 into 35 3325 है ना, 325. 3325 into 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1 क्या 1/10, तो I'll have 332.5 हो जाएगा guys। तो I'll have 4 into 9.81 का अगर करते हैं तो हम लोग के पास आता है 39.24 प्लस 60 प्लस 332.5 क्या आ रहा है, ऐसा आएगा। ये सारा कुछ न्यूटन्स में, तो सब कुछ न्यूटन में आ जाएगा। 39.24 प्लस 60 प्लस 332.5, आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज 431.74। क्या न्यूटन फोर्स अप्लाइड बाय द गैस। Am I clear all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, जितना गैस फोर्स लगा रहा है अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज इक्वल टू 431.74 डिवाइडेड बाय
35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन में है। सो हमारे 431.74 को अगर 35 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 12.335 या 10⁻⁴ जो ऊपर चला जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। ये पास्कल हो रहा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर हम लोग को आंसर Yes. किलो पास्कल में चाहिए तो 12.335 into 10⁴ डिवाइडेड बाय 10⁻³ कर देंगे तो 1 किलो पास्कल हो जाएगा। तो चला जाएगा, 3 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो रह जाएगा। सो आई हैव 123.35 किलो पास्कल प्रेशर ऑफ द गैस। ये ज्यादा है किस, ये प्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से कुछ प्रेशर फोर्स लगा रहा है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता तो पिस्टन और नीचे आ जाता, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना पड़ेगा, तभी वो 60 न्यूटन को, इसका मास को और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। इसलिए फोर्स यानी कि प्रेशर जो है वो 123.35 किलो पास्कल होगा, हायर देन 95 किलो पास्कल। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? एनीवन एनी डाउट? No, sir. तो हम लोग No, sir. नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम आर के राजपूत एंड अलग अलग सोर्सेज से। वैसा तो मैं आप लोग को गेट का भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, और अभी से आप लोग का अंदर का जो डर होगा गेट जैसा चीज को लेकर, उसको मैं अभी से खत्म करूँ। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I'll see you in the next class, guys. Till then, take care, all of you. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir.